Kothari, is Ms. Sisodia right in saying that there is actually nothing wrong legally and constitutionally for a CM to be in ED or judicial custody and send out orders? That literally is his job. Well, to that extent, it is true, because there is nothing, only if he was convicted, then he would have to demit office. The point is, Padmaja, the larger point is that when you operate out of jail, I think within a couple of weeks or so, or maybe a couple of days, if this man could be out on bail, then this brouhaha about this will stop. But the point is that, be that as it may, the fact that he's behind bars at the moment, yes, it all depends upon individual to individual, whether they need to, demit office, whether they need to resign morality, as morality would demand. But legally, constitutionally, I don't see a problem, because tomorrow, say, for example, Padmaja, there could be a completely false case. Now, this ED may have some truth in its case because they've got 338 crores. Supreme Court has passed observations that he's the kingpin, etc., blah, blah, blah. But tomorrow, if there is a completely fictitious case, and if he's safe for behind bars for 7 days, then what does one expect? I'm just going a step ahead and stretching the argument. So to that extent, I would side with what the AAP party is speaking. But from a larger perspective, from the people's perspective of Delhi, as to how they would view the chief minister, that who's behind bars and who's been embroiled in this scam. Obviously, this kind of a scam would not take place without several hands in the cookie jar. Now, one does not know the extent of his involvement, but the fact that ED sent him 9 summons, and what was more perturbing to me, Padmaja, is that after 3 summons or so, any individual like you and me would have gone and complied. To say that, if at the very first summons I would have gone, I would have been arrested, is basically pleading guilty in a way. Sir, I can speak for myself. I would be quaking in my boots at 1 summons and present myself. Exactly. I won't wait for 3 summons. But Guru Prakash, respond. No, the 3 summons I mentioned because of the law. The law says if after 3 summons you don't come, then you'll be arrested. Guru Prakash. Padmaja, there used to be a criminal called Syed Shahabuddin. He also had a similar disrespect for law and the agencies. Today, I am seeing that Mr. Arvind Kejriwal is nothing but a sophisticated version of Syed Shahabuddin. Syed Shahabuddin भी जेल से सिवान चलाते थे. अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली चला रहे हैं. अरविंद केजरीवाल जी सैयद शहाबुद्दीन के सोफिस्टिकेटेड वर्जन है. सैयद शहाबुद्दीन दिल्ली में आ जाए, शर्ट पैंट पहन ले और इसी प्रकार ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटने लगे, तो अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति आज यही हो गई है. ये वही अरविंद केजरीवाल है. Okay, that's a very serious allegation. I think she should respond. She should respond. Ms. Sisodia. Sophisticated Syed Shahabuddin, says Guru Prakash. उमा जी, रिस्पॉन्ड. मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ, शहाबुद्दीन जी की आप लोग, अरे आप ही की पार्टी के नेता हैं भाई, आप ही के दामाद हैं शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं. थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में भी बोल दीजिए. थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में भी बोल दीजिए. अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था, गुजरात से बाहर निकाल दिया गया था, जस्टिस लोया हत्याकांड में अमित शाह जी को बुलाया गया था कि आप कोर्ट में आइए. उन्होंने कोर्ट में आने की बजाय, let's talk facts here. Let's talk facts here. Syed Shahabuddin is not with the BJP. But anyway, I quickly want to ask you one thing. It's one thing to take out these orders. Now a special session, उमा सिसोदिया जी, कल एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है कि जेल में केजरीवाल जी को बड़ी चिंता हो रही है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की, तो एक स्पेशल सेशन बुला के उस पर चर्चा की जाए. This, by the way, is actual taxpayers' money. At every whim and fancy. आपको लगता है कि आपके MLAs को बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है, स्पेशल सेशन. आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, स्पेशल सेशन. केजरीवाल जी को जेल से लेटर लिखा जा रहा है, स्पेशल सेशन. How is this being done at taxpayers' money? Is this more of a drama being carried out? कि भाई जितना आप एनकैश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उतना आप एनकैश कर लीजिए. ये क्वेश्चन मेरे से है जी. ये स्पेशल सेशन किस खुशी में बुलाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं, स्पेशल सेशन. आप मुझे बताइए एंकर महोदया, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, क्या आप चाहती हैं कि बीजेपी सरकार देश के हर चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के, बिना किसी कारण के जेल में डाल दे और उनकी सरकार गिरा दी जाए? क्या आप ये चाहती हैं? मैं कतई नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि सारे मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास में रहें और काम करें. जी जान से सड़कों पर जुटी हुई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने पर मुझसे पूछ करके लिकर पॉलिसी तो बना ही नहीं गई ना, तो मेरी चाहत डजंट मैटर.
मैं तो ये भी चाहती हूँ कि लिकर पॉलिसी, मैं क्या, बीजेपी वो सरकार तो लीगल चाहती है ओपिनियन कि ये देश चाहता था के कि हर लिकर जगह पॉलिसी चेंज ना मुख्यमंत्री की को जाए। सिर्फ आरोप लगाकर जेल के पीछे डाल दिया जाए और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। अगर इतनी ही नैतिक बीजेपी है तो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। आप लोगों ने जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है उसका जवाब दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट को आपको कहना मैम, पड़ा इस कि पे आप लोग उनको को सुप्रीम कोर्ट की हत्या पड़ी करना ना लताड़, आप वो उसके सब हुआ। नैतिकता पर जवाब दीजिए। माय क्यों नहीं क्वेश्चन आप टू लोगों यू ने इज इस्तीफा डिफरेंट। दिया? ये स्पेशल सेशन किस खुशी में बुलाया जा रहा है? क्यों देखिए, स्पेशल आम सेशन का आदमी क्या पार्टी मतलब की है? सरकार है, हम चाहे एक सेशन बुलाएं चाहे 25 सेशन बुलाएं, इसमें अरे वाह। प्रॉब्लम क्या है? हमारी सरकार के मुखिया इस समय जेल में है। चलिए बताइए हमारी गुरु सरकार के प्रकाश, मुखिया इस समय एक जेल में सेशन है। बुलाएं या 24 सेशन बुलाएं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं पद्मजा, देखिए एक तो ये लोकतंत्र की दुहाई देती हैं और किसी दूसरे को बोलने नहीं देती हैं। देखो पद्मजा, दिक्कत क्या है, व्हेन यू गेट यूज्ड टू live in a palatial bungalow of 45 crore, 50 crore, when you are used to going to a washroom which is air conditioned, तब तो दिक्कत होगी ना। अरविंद केजरीवाल को आदत हो गई है पैलेस में रहने का, अब जेल में रहने में दिक्कत हो रही है। बट पद्मजा, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, Arvind Kejriwal is like any ordinary citizen and everyone is equal in the eyes of law. Madam, please go and read about equality before law. Please go and read about rule of law. In this country, the constitution is supreme. In this country, the law is supreme. Arvind Kejriwal is not beyond and above the constitution of India. अरविंद केजरीवाल कानून के ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल संविधान के ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के कारण वो जेल में है। वो कोई यहाँ पे कोर्ट के कारण वो जेल में है। कोर्ट का सम्मान करिए आप, संविधान का सम्मान करिए आप, कानून का सम्मान करिए आप। अरविंद केजरीवाल, आप ऐसे तर्क की बात मत करिए। कोर्ट का सम्मान करिए आप, कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकती हैं आप। अरविंद केजरीवाल जी अन्याय करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे।